দেশের শহরের পট পরিবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নিরলস প্রচেষ্টা এবং তারই অঙ্গ হিসাবে আজকে নর্থ ইস্টে সফর প্রধানমন্ত্রীর। প্রথমেই তিনি আজকে পৌঁছে গেছেন মণিপুরে, যেখানে 4,800 কোটিরও বেশি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। 800 কোটি টাকারও বেশি 4,800 কোটি টাকারও বেশি প্রকল্পের শিলান্যাসে পৌঁছে গেছেন মণিপুরের ইম্ফলে। সে জায়গা থেকে সরাসরি তুলে ধরবো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেই সন্ধিক্ষণ। সরাসরি চোখ রাখবো সেদিকে। I have the privilege to request our Honorable Chief Minister, Sri Nongthombam Biren Singh, to do the honor of felicitating the Honorable Prime Minister. Ahanbada ikai khunajariba lamdamasigi Mukhyamantri Sri Nongthombam Biren Singh na lamdamasigi lengyan fi khudol tamaga ikai khunajariba Pradhan Mantri bu taramna okpiri ikai khunaba utpiri. And presenting a cockade, it is a very specific headgear of the Meitei. The use of cockade differs significantly in style and according to the purpose of the used and occasion. Mathanga Khudol Tamjari, Tangkul Nagagi Sholama. And now we are presenting a replica of Hyang Hiril, a traditional royal race boat used at Hyang Tanaba ceremony. Mathangdana lamdamasigi chautok chapum oiriba khagi polo masanagi painting ama. The pompous game of polo has been an integral part of Manipuri culture through centuries of Meitei civilization. Thank you so much. Mathangasina thoramasi makha chathazara poina. Nasigi thoramasigi taramna opagi warol welcome address tibiranabagi damakta ikai khunajariba Deputy Chief Minister Sri Y. Joy Kumar Singh nolukna hangachari. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Manipur, Sri La Ganeshan, Honorable Chief Minister of Manipur, Sri N. Biren Singh, Sri Bhupendra Yadav ji, Honorable Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Honorable Union Minister of State, Dr. R.K. Ranjan Singh, Honorable Cabinet colleagues, Honorable Members of Parliament, Honorable MLAs, senior officials, dignitaries, distinguished guests and the invitees, friends from media, ladies and gentlemen. It is my privilege to deliver the welcome address on this auspicious occasion. Today's program for laying of foundation stones and the dedication of various developmental projects in Manipur will further strengthen the developmental momentum in the state. The project will address long-felt needs across many sectors such as education, health, agriculture, road infrastructure, information technology, water resources and tourism, amongst others. We are therefore extremely grateful to the Honorable Prime Minister for taking time out of his busy schedule to be here among us today for this very significant event. On behalf of the State Government of Manipur, it is my pleasure and a proud privilege to extend a very warm welcome to Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji to Manipur. We are thankful to the Honorable Prime Minister for his vision and a continued support for the development of the North-East region and the welfare of its people. On today's auspicious occasion, it is also my pleasure to welcome Honorable Governor of Manipur, Sri La Ganeshan ji. I also welcome our Honorable Chief Minister, Sri N. Biren Singh. I also welcome Honorable Union Minister of State for External Affairs and Education, Dr. Rajkumar Ranjan Singh.
I welcome all my cabinet colleagues. It is also my pleasure to welcome Honorable MP Maharaja Sanajawa Lesemba, Honorable MP Rajya Sabha Srimati MC Mary Kom, and Honorable MP Lok Sabha Dr. Loro. I also welcome all the honorable MLAs, public leaders, dignitaries, invitees, and the functionaries of various political parties who are present here today. It is also my honor to welcome all the well-wishers who are gathered and present here today. Before I conclude, I would like to once again extend a very warm welcome to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. We all are indeed very grateful to you for being here today. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. Mathang asina ikai khumnajariba Mukhya Mantri Sri Nongthombam Biren Singhna khwai taragi mafamda thauram asigi mapung oiba warol thambigani. Ay mayam puno ko ay nolong na kurumjari ngasi nungairaba numit asida aikhoi gi bharat ki adugumlaba legendary aina the living legend aina sinajaba अदुगुम्बा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हम आपको प्रार्थना करता हूं, सलाम करता हूं सर। मानंगासी लेंबी रक्तना मणिपुर ही मंगा फाइनेंस सिलेना कोई पाइखत चरकवा थबक थौरम कया जत्रा हुनबीबा अमदी इनोग्रेट तौबीबा सिगी लाकपीरीबा सिदैदा Dais Lengshin Biriba, Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, Aduga Manipur gi Adugumba, Honorable Governor, Shri La Ganeshan ji, Aduga Ikai Kumnajaraba, Indian Minister, Shri Bhupendra Yadav ji, aduga State Chigi, Deputy Chief Minister Shri Y. Joy Kumar, aduga Ikai Kumnajaraba, Union Minister of State of External Affairs and Education, Aigioza R. K. Ranjan Singh, aduga Ikai Kumnajaraba, Aikhoi gi Ningthau Maharaj Lesemba Sanajauba, aduga Aikhoi gi Sant, Aikhoi Star, Isanupi, Honorable MP, Rajya Sabha, MC Mary Kom, Aduga Aigi colleague, Minister Singh, Aduga Mangdaleng Sin Biriba, Honorable MLA Singh, Aduga Bharatiya Janata Party ki President, Party ki Senior Leader Singh, Government ki Official Singh, Aduga Arapa Madianak Padagi Lakpiriba, Manipur ki praja miyam punamak ay mayam utaramna oksa bagaloina na hanna na kurumjari amadi media mayam Delhi dagi amadi atopa topa station dagi lakpiraga function nasibu coverage to vibagi damakta ay gimaigay dagi thagat chaba amadi harauba phangtokchari ngasi foundation stone Taugadori Basi project
मापन्नी दोइनी पुन्ना प्रोजेक्ट कुनगनी थोइनी सिगुम्बा पुन्ना करोड़ लिसिंग मरीगा सानिपान तरा मंगा इनख्रबा मतम सिदा साउख्रबा भारत सिगे लेंगाक शासन अरुबा तांक कया थादोक पिरमगा ngasi akhoi iramdam sida langbirakna akhoi manipur gi miyang gi marakta saruk yabirariba aduguma honorable prime minister gi matangda wana manida maduda mayamna aigi laujari budugi matungina dum khumbirakne mahak na prime minister oirakpadagi matam amada bharat ka samnada badung leiramba khalamba align terma punamakto ngasi di ni sawrak pa matung dadi aikhoi gi notice se bharat ki apun ba sakam da amat wo na sakut thorang gi thabak kaya paikhat pirak leba particularly miyam mang dauna phangaro idana khallaga leram ba dugumba inner line permit pibi rakhiba adugumba British ke mayok ta lancheng na thawai tha khraba महाराज कुलचंद्र मदी मियोई कुलुम रोय अंडमान निकोबार दा लोई थाकी बसिंग दो हाय खोइना मदो ngasi भारत सरकार के अदुंबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मखादा अमित शाह जी न चलगा मदद लई कल्लकांदा अदुंबा माउंट हेरेंट न लेरंबा पोडो माउंट ठोकी बासुंबा भारत की लुसिंग बसिंग से मसी की दमकता स्लोगन लाउजर के मयाम फजना होगल लगा खुंबियो आई कोई मणिपुर की दमकता होगपियो तंगारबा पृथ्वी की मियामना लीडर खनबदा ख्वाइदगी टॉप ओइरबा 70% सपोर्ट लेरबा दुगुंबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ना भारत इमाना भारत इमाना मणिपुर इमाना मणिपुर इमाना मणिपुर इमाना थैंक यू अखोई की थामोई दगी फिल तौरम पोट मयाम अदो ngasi ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की ममांग दा अखोइना मयाम की कोऑपरेशन लोगजबनी ngasi फावबदा सही हुंबुद्रा का मंगा भारत ने निंखा तमकपदा मणिपुर की लैंड लोग लाइफलाइन इम्फाल जिरी लंबी आरसीसी की योट की थोंग भाग सारमदब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मखादा थोंग अहुम थोंग अनी संगागदौरिने अनीसुब थोंग संगागदौरिने नते मणिपुर की लाइरबसिंगी हुजिंग हातंग सिदैदा इंटरेक्शन तौनबदा ममित्तगी मपी ताना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपकी आयुष्मान भारत ने मेरा जिंदगी बचाया आईगी किडनी लौथोखिबगी आईगी हार्ट लायेंग बिबगी मदुगी ममित्तगी मपी ताना तंबजिंग दो हुजिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ताखिबनी सुगुम्बा आयुष्मान भारत कार्ड करम्बा पृथ्वी की लीडर करम्बा भारत की लीडर मन हौदो कांदा लुपा लाख मंगा के फ्री द लेटर लायर मयाम से लायेंग न कनाना पीखरगे करम्बा लीडर मन ngasi भारत पीखरगे बा करम्बा भारत की लीडर मन हंतक येंगो था तराग निपान कोविड की लाइना की नारब वारब मतम मपान थोंगब यादो मतम द था तराग निपान ने मियोई लाख यादनो सिंग किसी मंगा फ्री द पीरगे यंथोरे जी मसी की दमता कोई मा अखोई करी की दमता थागलोय करी की दमता थागलोय वैक्सीन कोविड-19 की अदुग मलाइना लाप मतम द हा का लाउनद्र पृथ्वी द अमेरिका द यूरोप द मी तोरा तुदन सिनरप मतम द भारत ना पृथ्वी की मपान दगी वैक्सीन लोबदी लायरन भारत वैक्सीन अनी पुथोखरी दो श्री नरेंद्र मोदी जी की मखाद अनी वैक्सीन अनी पुथोग भारत की प्रजा खत नते पृथ्वी की लेबाक चामद मतेंग पांगा कंदा अदुग मयाम मदुसु कनखिबनि नॉट ओनली भारत की मियोई करोड़ चामगा कुंथा मंगा लेबसि खत्ते नतना
पृथ्वी की लेबाक चामदा अदुगुम्बा हिदाक अदु पीरकांदा ngasi पृथ्वी की मयाम की महाक्सी मधुगी मयाम दुगी कन्ननबगी ईश्वरना थारप मी दंना पृथ्वी की मयामना लौनरइने अखोई की हाईवे सिंग कदी ओरमी मणिपुर की लैंडलॉक नहीं इसिंग लंबी सु लेते फ्लाइट की खुदोंग साब सु लेते अदुबा अखोई की नेशनल हाईवे सिंग कदी फिबम ओरमी हुजिक इम्फाल मोरे लंबी मयाम उबिरमनी इम्फाल माउ लंबी उबिरमनी इम्फाल मिजोराम ताबा चोरचानपुर लंबी उबिरमनी इम्फाल जिरी लंबी सीधा नते उखरुल दा माउ दा चोरचानपुर की एरिया दा सांदिल की एरिया दा सेंकल लिबा हाईवे मयाम घर घर जल युमथोंग खुदिंग इसिंग पिथक यादे है हमारा सरकार आने के टाइम पे 2017 में सर सिर्फ घर घर जल में मणिपुर में 5.7% था। अब आने के बाद में 4.5 साल में अभी पूरा 60% घर घर में जल भी दे रहे सर 60%। वी आर टारगेटिंग टू कंप्लीट 10% विद इन मार्च सर। आज आप इनोग्रेट करेंगे 2 बड़ा बड़ा वाटर सप्लाई स्कीम, एक सिंखई सिंह, एक सेनापति हिल डिस्ट्रिक्ट में बड़ा बड़ा ये लगाने के बाद में सर वी कैन रीच अप टू 70% सर। तो आपका जो ड्रीम है सबको अच्छे घर देना, सबको अच्छे पानी देना, सबको हेल्थ देना, अच्छा हेल्थ देना, सब आपकी कृपा से आपकी ब्लेसिंग से मणिपुर में सब एटलीस्ट 60-70% पहुंच रहे सर। अदुना नरेंद्र मोदी जी माना अखोई मणिपुर बु कयामुक याम नुंसिगे है बसे अगी अना उजबद अहलमन मैम यावी हंदक की काशीद मां गंगा की स्नान तब पूजा तब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मागी खुजाई पायरग सुमायने इसिंग लुप्पदो मागी फिजिकल फिटनेस मतमदुदा मा अतई सिदेबा अखोई मणिपुर की हुजिक सिरिबा सिगी लेंग्यान जे सिरग मा गंगा मा लुप्पे कयामु याम नमाना अखोई ऑल द टाइम कोविड की वारबा मतम कोविड की सांगब मयाम न हाका लाउनरो मतमदुदा माइद माना मदु खुम्मकांदा अखोई की फी लेंग्यान फीदु खुम्मकांदा कोविड की मयाम न पीबा मागी भाषण मागी अपील अदुना अखोई हुजिक फाउबदा गो टू हिल्स मिशन, गो टू विलेज मिशन दा जो भी आपका जो स्कीम्स है उज्ज्वला का हो और आयुष्मान भारत का हो, जो भी है हम लोग उसी को घर घर ले जाके डोर स्टेप डिलीवरी करने का हमने प्रोग्राम किया सर। अखोई ने हुजिक फाउबदा उज्ज्वला स्कीम की मखादा मियोई लाख मरीगा लिसिंग 13 मखादा कोई गैस कनो अखोई की उज्ज्वला स्कीम की मखादा कोई द एलईडी बल्ब यंथोखरे अदगी स्ट्रीट वेंडर सिंगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्कीम मखादा लाइरब सिंग ऑनरेबल कनो सिंग द लाइरब सिंग द कोई पीबगी दो लिसिंग मापन ग तरुक कोई ची थीरगा उखरुल दगी सेनापति दगी चोरचानपुर दगी सिगी मयाम से अखोइना तौदुना लेट लाइर मयाम पुनमक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मखादा लाइरबल हेनबद युम सागब कयानो युम रूरल की अमदि अर्बन की मसिदैद युम कया अमा सागेदना हुजिक इंटरव्यू लोब कांदा अखोई हाना नोंग मरकत लेरमबदो अखोई हुजिक युम साजरे इसा मरीगा अखोई युम नुंगाइना लेरे गैस फंगबदगी मैखु मरकत संथीना मैखु मई थारग मैखु मरकत लेरमबदो ngasi उज्ज्वला स्कीम दगी अखोई गैस फंगजर कांदा गैस साक थोंगे ममित की मफी ताना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तम्मे अदुन अखोई मिगी तविमल काव यादे भारत लेरिबा सेंटर लेरिबा बीजेपी गवर्नमेंट अदुगा बीजेपी गवर्नमेंट की लुसिंगबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मखादा मणिपुर पाखलइबा स्कीम सेमइबा सेंकत सागलइबा लेटर लाइरगी तौरइबा स्टार्टअप की स्कीम स्टैंड अप की स्कीम तौरइबा पुनमक्से मणिपुर बु नुंगसिबा अखोई मणिपुर की प्रजा मयाम बु मसागी मसादौना मसागी इमुंगदौना खनबदगी तौबिरपनी अदुना मसिगी तौबिमल खांगबो होइना अखोई लाखदौरिबा
2020-22 की election dadi akoi mapung phaba majority tawrakanda Shri Narendra Modi ji bu papangal kalhannaba akoi BJP led government ama mukpisi haibase ai mayam dagi wasak lokjaraga ai mayam bu hanna thagasari amadi khorumjari jai hind. Ikai kumnajariba Honorable Chief Minister bu hana thagatpa phongdokjari. Mathang asina BJP sarkar na Manipur da sashan pairakpa chahi mari tha nipal asigi manungda Manipur prajagi nungai yaifanabagi damak laukhalakpa akhanaba thabak thoram sing adugi samlappa paudam utliba video asi mayam punamu mideng taminasi. आई जाती है, शासन कैसे चलाया जाता है, विकास की योजनाओं पर कैसे काम होता है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के अगर कार्य करती है तो इसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मणिपुर की भव्य तस्वीर देख करके हर किसी को मिल जाता है. The growth story of India shall never be complete until the northeastern states progress at par with the rest of the country. Northeast is becoming the new engine of India's growth under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Today, the state of Manipur is truly reaping the benefits of the double-engine government. From bringing transparency in governance to maintaining law and order to boosting infrastructural development, the state government is writing a new chapter in the transformational story of Manipur. Manipur is moving ahead with the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas and becoming self-reliant in every sector. The state has created a record 1 lakh jobs through the MSME sector. 5,477 startups have been benefited under Startup India with a cost of rupees 114.56 crore. The inner line permit is the biggest gift of the Modi government for the people of Manipur. The central government renamed Mount Herit as Mount Manipur. The government is setting up the Rani Gaidinliu Tribal Freedom Fighters Museum in Tamenglong district to celebrate the unsung heroes. To recognize the role of Manipuri women in economic development, the government has inaugurated 7 Imam markets in hill districts that are fully functional. The central government envisions transformation through transportation in Manipur. The government has been focusing on connectivity and has revived 2 lifelines, Barak Bridge and Maku Bridge in the state. One of the highest bridges in the world, having a pier height of 141 meters, is being built on the Jiribam-Imphal new railway line project. Initiatives of central government schemes such as Pradhan Mantri Awas Yojana, Pradhan Mantri Ujwala Yojana, Jal Jeevan Mission, Ujala Yojana, PM Kisan Samman Nidhi Yojana are emerging as a boon for the people of Manipur. More than 8 lakh beneficiaries have been enrolled for free cashless treatment under the Ayushman Bharat and Chief Minister Gi Haksel Gi Tengbang schemes. Churachandpur Medical College is under construction, which is the first medical college in the hill districts of Manipur. Manipur is India's sports powerhouse. The players of the state have brought laurels for the country. Go to Hills and Go to Village missions have ensured doorstep delivery of government services. In the wake of the COVID-19 pandemic, Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana is fulfilling the food requirement of the needy by providing food grains through PDS. A subsidized ration has been provided to 24.3 lakh people under the National Food Security Mission. PSA oxygen plants have been sanctioned for the state through PM Cares for each of the 16 districts. In a short span of time, Manipur has demonstrated path-breaking models of development and good governance. Mathang asina Manipur miyamgi chawkhat thaurangi damak ngasi kai khumnajariba Pradhan Mantri na miyamda khusin nabiram gadaba project sing kari kari no haibadu mayam punna amuktang khangminasi. Everyone's attention on the screens, please. Reaping the benefit of the Indian government with the concerted efforts of the central and state government, Manipur is a stable, peaceful and developing state. The state is the focal point of the country's development and the has been for the development and economic progress of the state. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is dedicated to major
infrastructural projects worth rupees 1,008 crore to the people of Manipur. Foundation stone for 9 projects worth rupees 257 crore. System of Taubal multi-purpose project has been completed with a cost of rupees crore. Clean drink for people residing in Imphal. 65 crore consisting of artificial fish is all set to solve the water scarcity problem and provide water to residents of the project of augmentation of water supply scheme at Sena built at a cost of rupees 51 crore to provide daily drink at least 3,500. The 154-meter long bridge has been constructed at a cost of rupees 79 crore is all ready to connect Manipur with the rest of India. To strengthen the health sector and step up the fight against the COVID-19 pandemic in the state, bedded has been rupees 37 crore at Kiamgai Mayai Lekai Imphal. Project 173 crore under the Imphal Smart City mission have been completed in the state. The project consists of the integrated command and on Imphal River and the Mall Road at Tangal Bazaar have been completed. The INA War Memorial Museum has been developed with a cost of rupees 30 crore at Moirang. The Indian national flag will be 165 feet flagpole, making it one of the tallest in the northeast region. The Govindaji temple in Imphal has been refurbished and renovated at a cost of rupees 23 crore. Prime Minister Shri Narendra Modi will hand over 2,387 mobile towers with 4,056 BTS money. Fast mobile connect internet for everyone. A new industrial training institute at Kosovo has been established. Training. The IPR building has been constructed at a cost of rupees 12 crore and it is equipped with an IT for speedy examination. The various projects will be laid for the people in line with the vision of transportation. Mr. Shri Narendra laid a foundation stone for 5 national highway projects of 1,104 spending 100 provide and boosting hospital worth rupees 160 crore. Worth 31 crore on a Shri Narendra Modi will lay the foundation stone for these projects will consist of infrastructure for several colleges and hostels along with 50 health centers. The Prime Minister will lay the foundation stone for the biggest initiative in the state, Center Innovation and Trade. The project will be built at a cost of rupees and play a significant create opportunities. With the rich cultural heritage of Manipur, Honorable Prime Minister they will lay the foundation stone for the Manipur Institute of Performing Arts at Gurugram, which will be built at rupees 242 crore. Equipped with modern amenities and Narendra Modi will lay the foundation for the government residential quarters worth rupees 390 crore at New Chekon. A mega handloom cluster worth rupees 31 crore will be set up at Nongpo Kakching, the native village of Olympus silver medalist Mirabai Chenu. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will lay the foundation stone for Craft and Handloom Village worth rupees 5 crore in Moirang, which will harness the tourism potential of Loktak Lake. With an estimate, Narendra Modi will also lay the foundation for the rope at Ibudau Margin. This is a testimony to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's commitment to ensure the all-round development of Manipur. The Prime Minister has all his efforts to facilitate equal development of all the people living across the state. Project Singh Hojik Ikai प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर की मियामदा खुदोल तंबीरगनी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर के विकास में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे. ऑनरेबल
Thank you so much, sir, for doing the honor. अब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से विनती है कि कृपया आज के इस ऐतिहासिक दिन अपने मनोभावों को व्यक्त करें। कार्यक्रम में उपस्थित मणिपुर ला गणेशन जी, मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री वाई जयकुमार सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी भूपेंद्र यादव जी, राजकुमार रंजन सिंह जी, मणिपुर सरकार में मंत्री विश्वजीत सिंह जी, लोसी दिखो जी, लेतपाओ होकीप जी, न्यूमाई जी, एस राजेंद्र सिंह जी, बुर्गजागिन बालते जी, सत्यव्रत सिंह जी और लुखोई सिंह जी, संसद में मेरे सभी साथीगण, अन्य प्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे भाई और मणिपुर की महान धरती को, यहां के लोगों को, यहां की गौरवशाली संस्कृति को झुका करता हूं। साल की आना, आपसे मिलना, आप प्यार पाना, आशीर्वाद पाना, जीवन में इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। आज जब मैं एयरपोर्ट से उतरा, एयरपोर्ट से यहां तक आया, करीब 8-10 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह मणिपुर के लोगों ने कर दिया, रंग दिया। एक प्रकार से पूरी ह्यूमन वॉल, 8 किलोमीटर की ह्यूमन वॉल, ये सत्कार, ये आपके कभी भी कोई भूल नहीं सकता है। आप सभी को वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ दिन बाद 21 जनवरी को मणिपुर को राज्य का दर्जा मिले 50 साल पूरे हो जाएंगे। देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव भी मना रहा है। ये समय अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। मणिपुर वो है जहां राजा भाग्यचंद्र और पू खेतिंगखांग सिथलो जैसे वीरों ने जन्म लिया। देश के लोगों में आजादी का जो विश्वास यहां मोइरांग की धरती ने पैदा किया, वो अपने आप में एक मिसाल है।
जहां नेताजी सुभाष जी की सेना ने पहली बार झंडा फहराया था, जिस नॉर्थ ईस्ट को नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता का प्रवेश द्वार कहा था, वो आज नए भारत के सपने पूरे करने का प्रवेश द्वार बन रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि देश के पूर्वी हिस्सा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का प्रमुख स्रोत बनेगा। आज जब हम देख रहे हैं कि किस तरह मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट भारत के भविष्य में नए रंग भर रहा है। साथियों, आज यहां एक साथ इतनी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये अलग अलग मणियां हैं, जिनकी माला मणिपुर के लोगों का जीवन आसान बनाएगी। सना लईबाग मणिपुर की शान और बढ़ाएगी। इंफाल के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर की सुरक्षा भी बढ़ेगी और सुविधाओं का भी विस्तार होगा। बराक रिवर ब्रिज के जरिए मणिपुर की लाइफलाइन, उसको एक नई ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। थोबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के साथ साथ तामेंगलोंग में वाटर सप्लाई स्कीम से इस दूरस्थ जिले के सभी लोगों के लिए साफ और शुद्ध पानी का इंतजाम हो रहा है। साथियों, याद करिए, कुछ साल पहले तक मणिपुर में पाइप से पानी की सुविधा कितनी कम थी। केवल 6% लोगों के घर में पाइप से पानी मिलता था। लेकिन आज जल जीवन मिशन को मणिपुर के जन जन तक पहुंचाने के लिए बीरेन सिंह जी की सरकार ने दिन रात एक कर दिया है। आज मणिपुर के 60% घरों में पाइप से पानी पहुंच रहा है। जल्द ही मणिपुर 100% सैचुरेशन के साथ हर घर जल का लक्ष्य भी हासिल करने वाला है। यही डबल इंजन की सरकार का फायदा है। यही डबल इंजन की सरकार की ताकत है। साथियों, आज जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनके साथ ही मैं आज मणिपुर के लोगों का फिर से धन्यवाद करूंगा। आपने मणिपुर में ऐसी स्थिर सरकार बनाई जो पूरे बहुमत से, पूरे दमखम से चल रही है। ये कैसे हुआ? ये आपके एक वोट के कारण हुआ। आपके एक वोट की शक्ति ने मणिपुर में वो काम करके दिखाया जिसकी पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ये आपके एक वोट की ही ताकत है, जिसकी वजह से
मणिपुर के 6 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए मिले। और मुझे अभी ऐसे कुछ लाभार्थी किसानों से बातचीत करने का मौका मिला। उनका आत्मविश्वास, उनका उत्साह वाकई देखने जैसा था। ये सब आपके एक वोट की ताकत है, जिसकी वजह से मणिपुर के 6 लाख परिवारों को पीएम गरीब कल्याण योजना का मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 80,000 घरों को स्वीकृति। ये आपके एक वोट की ताकत का ही कमाल है। यहां के 4,25,000 से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलना आपके एक वोट की वजह से ही संभव हुआ है। आपके एक वोट ने 1.5 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिलवाया है। आपका एक वोट ने 1,30,000 घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिलवाया है। आपके एक वोट ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत 30,000 से ज्यादा घरों में शौचालय बनवाया है। ये आपके एक वोट की ही शक्ति है कि कोरोना से मुकाबले के लिए यहां वैक्सीन की 30 लाख से अधिक डोज मुफ्त दी जा चुकी है। आज मणिपुर के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। ये सब कुछ आपके एक वोट ने किया है। मैं आप सभी मणिपुर वासियों को अनेकविध उपलब्धियों के लिए हृदयपूर्वक हार्दिक बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी और उनकी सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो मणिपुर के विकास के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया था। मैं जानता था कि आपके दिल में किस बात का दर्द है, और इसलिए 2014 के बाद मैं दिल्ली को, पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। नेता हो, मंत्री हो, अफसर हो, मैंने सबको कहा कि इस क्षेत्र में आइए, लंबा समय गुजारिए और फिर यहां की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं बनाइए। और भावना ये नहीं थी कि आपको कुछ देना है, भावना ये थी कि आपका सेवक बनकर जितना हो सके आपके लिए
मणिपुर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए संपूर्ण समर्पण से, संपूर्ण सेवा भाव से काम करना है। और आपने देखा है आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में नॉर्थ ईस्ट के 5 प्रमुख चेहरे देश के अहम संभाल रहे हैं। साथियों, आज हमारी सरकार की 7 वर्षों की मेहनत पूरे नॉर्थ ईस्ट में दिख रही है, मणिपुर में दिख रही है। आज मणिपुर बदलाव का एक नई कार्य संस्कृति का प्रतीक बन रहा है। ये बदलाव है मणिपुर के कल्चर के लिए, केयर के लिए। इसमें कनेक्टिविटी को भी प्राथमिकता है और क्रिएटिविटी का भी उतना ही महत्व है। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स, बेहतर मोबाइल नेटवर्क मणिपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। CIIT यहां के युवाओं में क्रिएटिविटी और इनोवेशन की स्पिरिट को और मजबूत करेगा। आधुनिक कैंसर हॉस्पिटल गंभीर बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए मणिपुर के लोगों की केयर में मदद करेगा। मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना और गोविंद जी मंदिर का जीर्णोद्धार मणिपुर के कल्चर को संरक्षण देंगे। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की इसी धरती पर रानी गाइदिन्ल्यू ने विदेशियों को भारत की नारी शक्ति के दर्शन करवाए थे, अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। रानी गाइदिन्ल्यू म्यूजियम हमारे युवाओं को अतीत से भी जोड़ेगा और उन्हें प्रेरणा भी देगा। कुछ समय पूर्व हमारी सरकार ने अंडमान निकोबार के माउंट हैरियट, अंडमान निकोबार में एक टापू है जो माउंट हैरियट के नाम से जाना जाता था। आजादी के 75 साल होने के बाद भी लोग उसे माउंट हैरियट ही कहते थे, लेकिन हमने उस माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर रखने का भी निर्णय किया। अब दुनिया का कोई भी टूरिस्ट अंडमान निकोबार जाएगा तो ये माउंट मणिपुर क्या है, उसका इतिहास क्या है, वो जानने की कोशिश करेगा। नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहले की सरकारों की तय पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी यही थी, डोंट लुक ईस्ट। पूर्वोत्तर की तरह दिल्ली में तभी देखा जाता था जब यहां चुनाव होते थे, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है, यहां विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। अब पूर्वोत्तर में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और रेल भी पहुंच रही है। जिरीबाम, तुपुल, इंफाल रेल लाइन के जरिए मणिपुर भी अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। इंफाल मौर्य हाईवे
यानी एशियन हाईवे, ये हाईवे 1 का काम भी तेजी से चल रहा है। ये हाईवे साउथ ईस्ट एशिया से भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। पहले जब एक्सपोर्ट की बात होती थी तो देश के गिने चुने शहरों का ही नाम सामने आता था, लेकिन अब इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल के जरिए मणिपुर भी व्यापार और एक्सपोर्ट का एक बड़ा केंद्र बनेगा, आत्मनिर्भर भारत को गति देगा। और कल देशवासियों ने खबर सुनी है, आजादी के बाद पहली बार कल देश ने $300 बिलियन का एक्सपोर्ट करके एक नया विक्रम स्थापित कर दिया। छोटे छोटे राज्य भी उसमें आगे आ रहे हैं। साथियों, पहले लोग पूर्वोत्तर आना चाहते थे, लेकिन यहां पहुंचेंगे कैसे, ये सोचकर ही रुक जाते थे। इससे यहां के पर्यटन को, टूरिज्म सेक्टर को बहुत नुकसान होता था। लेकिन अब पूर्वोत्तर के शहर ही नहीं बल्कि गांवों तक भी पहुंचना आसान हो रहा है। आज यहां बड़ी संख्या में नेशनल हाईवेज का काम भी आगे बढ़ रहा है और गांव में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सैकड़ों किलोमीटर की नई सड़कें बन रही है। नेचुरल गैस पाइपलाइन जैसी जिन सुविधाओं को कुछ क्षेत्रों का विशेषाधिकार मान लिया था, वो भी अब पूर्वोत्तर तक पहुंच रही है। बढ़ती हुई ये सुविधाएं, बढ़ती हुई ये कनेक्टिविटी यहां पर टूरिज्म बढ़ाएगी, यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएगी। साथियों, मणिपुर देश के लिए एक से एक नायाब रत्न देने वाला राज्य रहा है। यहां के युवाओं ने और विशेषकर मणिपुर की बेटियों ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा उठाया है, गर्व से देश का सर ऊंचा किया है। विशेषकर आज देश के नौजवान मणिपुर के खिलाड़ियों से प्रेरणा ले रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों से लेकर ओलंपिक तक, रेसलिंग, आर्चरी और बॉक्सिंग से लेकर वेट लिफ्टिंग तक मणिपुर ने एमसी मैरीकॉम, मीराबाई चनू, बमला देवी, लायसरम सरिता देवी, कैसे कैसे बड़े नाम है, ऐसे बड़े बड़े चैंपियंस दिए हैं। आपके पास ऐसे कितने ही होनहार हैं जिन्हें अगर सही गाइडेंस और जरूरी संसाधन मिले तो वो कमाल कर सकते हैं। यहां हमारी ये युवाओं में, हमारी बेटियों में ऐसी प्रतिभा भरी हुई है। इसलिए हमने मणिपुर में आधुनिक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। ये यूनिवर्सिटी इन युवाओं को न केवल अनेक सपनों से जोड़ने का काम करेगी, बल्कि खेल जगत में भारत को भी एक नई पहचान देगी। ये देश की नई स्पिरिट है, नया जोश है, जिसका नेतृत्व अब हमारी युवा बेटियां करेगी। साथियों, केंद्र सरकार ने जो ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है, उसका भी बड़ा लाभ
नॉर्थ ईस्ट को होगा। आज भारत अपनी जरूरत पूरा करने के लिए विदेशों से बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का आयात करता है। इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ये पैसे भारत के किसानों को मिले, भारत खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में हमारे प्रयास जारी है। 11,000 करोड़ रुपए के इस ऑयल पाम मिशन से किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी और ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में होने वाला है। यहां मणिपुर में भी इस पर तेजी से काम हो रहा है। ऑयल पाम लगाने के लिए, नई मिलें लगाने के लिए सरकार आर्थिक मदद भी दे रही है। साथियों, आज मणिपुर की उपलब्धियों पर गौरव करने के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि अभी हमें आगे एक लंबा सफर तय करना है, लंबा सफर तय करना है। और हमें ये भी याद रखना है कि हमने ये यात्रा कहां से शुरू की थी। हमें याद रखना है कि कैसे हमारे मणिपुर को पिछली सरकारों ने ब्लॉकेड स्टेट बनाकर रख दिया था। पहले की सरकारों द्वारा हिल और वैली के बीच राजनीतिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया। हमें याद रखना है कि लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने कैसे कैसे षड्यंत्र किए जाते थे। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से इस क्षेत्र में उग्रवाद और असुरक्षा की आग नहीं है, बल्कि शांति और विकास की रोशनी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सैकड़ों नौजवान हथियार छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। जिन समझौतों का दशकों से इंतजार था, हमारी सरकार ने वो ऐतिहासिक समझौते भी करके दिखाए हैं। मणिपुर ब्लॉकेड स्टेट से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रास्ते देने वाला स्टेट बन गया है। हमारी सरकार ने हिल और वैली के बीच खोदी गई खाई को पाटने के लिए गो टू हिल्स और गो टू विलेज ऐसे अभियान चलाए हैं। इन प्रयासों के बीच आपको ये याद रखना होगा कि कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए मणिपुर को फिर अस्थिर करना चाहते हैं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अशांति का खेल खेले। मुझे खुशी है कि मणिपुर के लोग इन्हें पहचान चुके हैं और मणिपुर के लोग यहां का विकास रुकने नहीं देंगे। मणिपुर को फिर से अंधेरे में नहीं जाने देना है। साथियों, आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र पर चल रहा है। आज देश सबका प्रयास की भावना से एक साथ काम कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है, सब दूर काम कर रहा है। 21वीं सदी का ये दशक मणिपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
पहले की सरकारों ने बहुत समय गंवा दिया। अब हमें एक पल भी नहीं गंवाना है। हमें मणिपुर में स्थिरता भी रखनी है और मणिपुर को विकास की नई ऊंचाई पर भी पहुंचाना है। और ये काम डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है मणिपुर इसी तरह डबल इंजन की सरकार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा। एक बार फिर आज की अनेक विध परियोजनाओं के लिए मणिपुर वासियों को, मणिपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थागतचरी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मणिपुर की राजधानी। মণিপুর থেকে সরাসরি আপনারা যে ছবি দেখলেন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি আজকে মণিপুরে গেছিলেন এবং সেখানে 4,800 কোটি টাকার বেশি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। প্রায় 22টি প্রকল্প আজকে উদ্বোধন হয়েছে মণিপুরে এবং তার পাশাপাশি 1,700 কোটি টাকার বেশি জাতীয় সড়কের উদ্বোধন করা হয়েছে বাজেটের এবং তার পাশাপাশি 1,100 কোটি টাকার বেশি মোবাইল টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুন্দর করে তোলা এবং তার পাশাপাশি মোবাইল টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে প্রায় 350টি, যেখানে ক্যান্সার হসপিটাল তৈরি করা হয়েছে এবং তার পাশাপাশি কোভিড হসপিটাল তৈরি করা হয়েছে 200 বেড বিশিষ্ট এবং তার পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য প্রায় 280 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে বিশুদ্ধ পানীয় জল। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যাতে পানীয় জল পৌঁছে যেতে পারে সেই বিষয়টিকেই মূলত লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এমনকি হস্ততাঁতের উপরেও বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সার্বিকভাবে বিভিন্ন প্রকল্প বিভিন্নভাবে নর্থ ইস্ট থেকে শুরু করে মণিপুরকে উন্নত করে তোলা, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুন্দর করে তোলা, বহু মানুষ যাতে উত্তর পূর্বে ঘুরতে আসতে পারে, উত্তর পূর্বে যাতে আসতে পারে তার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করে রাখার জন্য এই প্রকল্পের উদ্বোধন। প্রায় 22টি প্রকল্পের আজকে উদ্বোধন করেছেন। তবে এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। এসেই প্রথমে তিনি আগরতলা বিমানবন্দরের উদ্বোধন করবেন এবং পরবর্তী সময় তিনি আস্তাবল ময়দানে আসবেন, যেখানে জনসভাতে মিলিত হবেন। বিমানবন্দরের উদ্বোধনের পরই তিনি মূলত আস্তাবল ময়দানে আসবেন, যেখানে 3টি প্রকল্পের উদ্বোধনের কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। তবে সেই যে সন্ধিক্ষণের জন্য দিনের পর দিন যে প্রস্তুতি ছিল, যে প্রশাসনিকভাবে তৎপরতা ছিল, সেই তৎপরতা অবশেষে অবসান। বছরের একদম প্রথম দিন 4 তারিখ আজকে মণিপুরে ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে প্রধানমন্ত্রী। অবশেষে তিনি রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। একটা বিরতি নিচ্ছে, 8টি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন।